हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे कि टी टेस्ट क्या है या स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या है। टी टेस्ट को ही समटाइम स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ये बताया गया है कि टी टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आप टी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमको दो चीजें देखनी है कि जब कभी भी सैंपल का जो साइज है वो लेस देन इक्वल टू 30 हो। मतलब आपने जो आपको मैंने कल कॉन्स्टिट्यूंसी वाले एग्जांपल से बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 5,000 वोटर हैं तो उन 5,000 वोटर्स का जो टेंडेंसी है वो समझने के लिए एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ सैंपल्स उठाने थे। ठीक है। तो वो जो सैंपल्स हम ले रहे थे उसी सैंपल्स का जितना नंबर होता है जितने साइज होता है उसी को सैंपल साइज बोला जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए दूसरी कंडीशन जो कि जरूरी है वो ये है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन शुड नॉट नोन। ओके। सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हेन we can apply t test on any problem. These two conditions should be fulfilled. ठीक है। नाउ व्हाट डज टी टेस्ट मेजर। यहाँ पे बताया गया कि इट मेजर्स द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल मीन। यस, टी टेस्ट जो है वो सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन के बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस को मेजर करता है। मतलब सैंपल के जरिए जो मीन हमको प्राप्त हो और हम एक हाइपोथेटिकल मीन दे रहे हैं, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन मैं इसको बोल सकता हूँ, उसके बीच के डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है। अब हम इसके वर्किंग रूल पे अगर आए कि टी टेस्ट कैसे काम करता है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम पे आप सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम पे देखेंगे कि उसका सैंपल साइज क्या है। अगर वो सैंपल साइज 30 या 30 से कम है तब तो आप उस पर टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और उस प्रॉब्लम का जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट शुड नॉट बी नोन। These are the two conditions we have to check before applying the t-test on any problem. Now, when we talk about working rule for t-test, so these are the steps I have mentioned here to apply t-test on any problem, right? So in first step, what we will do, we'll set a null hypothesis. Null hypothesis is also called a true hypothesis, which says that mu is equal to mu naught, where mu is representing the sample mean and mu naught is representing the hypothetical mean. And when we take these two values equal, it means there is no significant difference between the sample mean and hypothetical mean. So this is what we consider in null hypothesis. We always consider or we always assume that there is no significant difference between the sample mean and the hypothetical population mean. And in step number 2 we always do these, whatever step I am mentioning here, we will always follow these steps. We will always follow this working rule. So as I have written here, in first step we'll set a null hypothesis. In second step we'll set alternative hypothesis, and in third step we'll calculate the t value, and in fourth step we'll measure the level of significance, and at fifth step we'll reach at the conclusion. So these are the steps that you have to follow strictly to solve any problem based on t-test, right? So first we have set null hypothesis, and in this we have considered that there is no significant difference between the sample mean and hypothetical mean. In second step we will always consider that, yeah, that the assumption or the hypothesis is not true, right? It means there is a significant difference between the sample mean and hypothetical mean. So in this alternative hypothesis is always the complement of the null hypothesis. Whatever, if null hypothesis is always true, so alternative hypothesis will always be like not true, right? Now coming to the third step, which says that now here we have to find
the value of t. So that's why we have I have written here tcal. Tcal means we are calculating the value of t with the help of this formula, which says that x bar minus mu divided by small s upon root over n. So this is the formula of tcal, which is going to give us the value of t for the given problem. In this formula, this x bar is the sample mean, representing the sample mean, this small n representing the sample size, this small s representing the standard deviation of sample, and this so everything is I mean, uh, to use this formula only these things were required, and we have elaborated all these things. What are these things we have elaborated here. Now suppose in this formula s is not given, so in that case we can also derive s with the help of this formula. S means sample standard deviation, and with the help of this formula we can find the value of s, which is square root of summation of x minus x bar square divided by n minus 1. So this formula we will use when standard deviation of sample is not given. Okay, and mu is equal to mu is not, it means population mean. Now we'll find the value. After getting the value of tcal, we'll find the mod of that value, right? So in third step, with the help of this formula, first we'll find the value of tcal, and at the end of this step we'll find the modulus of that value. In step number 4, from the t-test table, we have been providing a t-test table, which uh, I will teach you how to observe or how to find the value from the t-test table. So I will tell you in this video. So from the t-test table, we'll find the value of t tabulated. This t tab representing the t tabulated value at the level of significance alpha is equal to 5% for the degree of freedom n minus 1, right? So from the t-test table, we'll find the value of t tab for the significance level alpha is equal to 5%, and for the degree of freedom n minus 1, n is representing the sample size and alpha is representing the significance level. And at the end we'll simply check the value of this tcal should be less than, strictly less than rather, the value of t tabulated. If this condition satisfies, then the null hypothesis H0 is accepted. That is, we consider that there is no significant difference between sample mean and hypothetical population mean. And this shows that the sample is taken from the correct population. And if in case t calculated value, mod of t calculated value is strictly greater than t tabulated value, it means the hypothesis, null hypothesis H0 is rejected and alternative hypothesis H1 is accepted. That is, there is a significant difference between the sample mean and hypothetical population mean, and it means that the sample is not taken from the correct population. Okay, so the thing is that there are 5 steps in the working rule of t-test. In first step, we'll set a null hypothesis. In second step, we'll set an alternative hypothesis. In null hypothesis, we'll consider that there is no significant difference between the sample mean and hypothetical mean. So we'll consider mu is equal to mu naught. And in alternative hypothesis, we'll consider that there is a significant difference between these two means. So we'll take mu is not equal to mu naught. In third step, we'll calculate the value of tcal, and at the end of this step, we'll find that modulus of tcal, and from t table, in step number form, t table, we'll find the value of t tabulated at the level of significance alpha equal to 5% for the degree of freedom n minus 1. And in conclusion part, we'll simply check the whether the modulus value is less than tabulated value.
if this happens, then the hypothesis is accepted, and if this will not happen, the hypothesis will be rejected. Now we will check how we can solve any problem with the help of t-test. ओके, हमने यहाँ पे एक t-test पे बेस्ड एक प्रॉब्लम ले रखी है, जिस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि फाइंड द स्टूडेंट t, जिसको हम लोग t-test भी बोलते हैं, फॉर द फॉलोइंग डेटा। डेटा यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आप अगर इसको काउंट करें तो 8 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। टेकिंग द मीन ऑफ द पॉपुलेशन टू बी 0, और साथ में एक कंडीशन दे रखी है कि जो पॉपुलेशन का मीन है ना, वो 0 दे रखा है। सो हमने जो वर्किंग रूल में पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन पॉइंट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, सो मुझे सबसे पहले देखा जाए क्या दिया है। n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, विच इज सैंपल साइज, 8 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। इसके बाद मुझे दिया गया है पॉपुलेशन मीन जिसकी वैल्यू है म्यू, दैट इज 0 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूले में फाइंड द स्टूडेंट टी बोला गया है, मतलब हमको सिर्फ वो टी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको हाइपोथेसिस यहाँ पे नहीं टेस्ट करनी है। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला गया है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, टेस्ट द हाइपोथेसिस नहीं बोला गया। यहाँ पे सिर्फ यही बोला गया है कि फाइंड द स्टूडेंट टी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो स्टूडेंट टी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो डेटा हमने यहाँ पे निकाल लिए। यहाँ से n इक्वल टू 8 दिया है, पॉपुलेशन मीन जो है वो 0 गया, और हमको पता है कि जो t वैल्यू होती है, t कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होती है, दैट इज x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई s रूट ओवर n। दिस इज द वैल्यू ऑफ t cal which we have to find in this question, right? So since s bar is not given, mu is given, mu is 0, s is also not given, and square root n will be the square root 8. So we have to find the value of x bar and s in this case. ठीक, so x bar is nothing but sample mean. See, the sample data is already given to us, so sample mean is nothing but summation of x divided by total number of observations. So summation of x means we have to sum all these values, that is -4 plus -2 plus -2 plus 0 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3 divided by 8. When we add all these data and when we'll divide it with the by 8, we'll get this as a result. 0.25 will be the answer when we'll divide the sum of all these value by 8, right? So this is how we'll get our sample mean. Now coming to find the value of s, which is sample standard deviation, and the formula for this is given by x minus x bar का whole square divided by n minus 1 का square root, right? So again x is given, x bar we have already found, n is known 8. So to calculate the sample standard deviation, first we have to find the value of x minus x bar का whole square, right? See, so to find this, what we will do here, we'll simply put the values of x vertically, right? Like -2, -4, -2, -2, 0, 2, 2, 3, and 3. This is x, and we know x bar is already 0.25, so we'll find the value of x minus x naught bar. So see, what we do, we'll simply subtract -4
by minus 0.25, and whatever value we'll get we'll write here, right? So it should be minus 4.25. Similarly, we'll find the value of minus 2 minus 0.25, and this is nothing but minus 2.25. Similarly, we'll calculate the other values, and at the last column we'll do the square of all these values. So minus 4.25 chi square, whatever value we'll get, we'll simply do like this. So at the end, when we calculate, when we'll put, so in this place we'll get the value of x minus x bar ka whole square, right? And this value is divided by n minus 1. So n minus 1 will be the 7. N minus 1 means 8 minus 1, that is 7. So we'll find small s is equal to x minus x bar ka whole square divided by n minus 1. Its value is 2.659. So ultimately we have the value of s, we have the value of x, we have the value of small n, we have the value of mu. So at the end we'll simply put all these values in this formula. So we will have 0.25, which is the value of x bar, minus 0, which is the value of mu, and 2.659 value of s, and square root 8, right? So when we calculate this with the help of calculator, we will get the value of 0.27. So T calc is value is 0.27. This is the final answer for this question. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम टी टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जैसे जैसे स्टेप्स मैं लिखूंगा या जो भी टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा, आपको एग्जाम में वैसे ही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? वही सिस्टमेटिक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब हम ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा दिया गया है और कैसे उन डेटा की हेल्प से हम इस क्वेश्चन के ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पे आप जो दिया गया है यहाँ पे आप पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन? अ सैंपल ऑफ 20 आइटम्स, a sample of 20 items has mean 42 units. ओके, सो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो भी डेटा दिया है उसको यहाँ पे लिखते चलते हैं, ठीक है? अ सैंपल ऑफ 20 आइटम्स, सैंपल में कितने आइटम्स है? 20 आइटम्स है, मतलब सैंपल साइज दिया गया है ना? यहाँ पे सैंपल साइज दिया जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। हैज मीन 42 यूनिट्स, सैंपल मीन यहाँ पे 42 यूनिट्स दिया गया है। ओके, तो सैंपल मीन मीन्स एक्स बार, इट इज गिवन 42 यूनिट्स, ठीक है? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट्स। ये पूरा जो डेटा है फर्स्ट लाइन में, ये सब डेटा सैंपल के लिए दिया गया। सैंपल साइज दिया है 20 यूनिट, सैंपल मीन दिया है आपका 42 यूनिट, एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज स्मॉल एस दिया है 5 यूनिट, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 45 यूनिट। बोल रहा है कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करिए, मतलब उसने सैंपल साइज से सैंपल मीन बताया 42 यूनिट है और ये बताया कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट है। ये हमको डेटा देके वो बोल रहा है कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करिए दैट इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 45 यूनिट। वो बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 45 यूनिट दिया गया है यहाँ पे, मतलब म्यू जो है दैट इज गिवन 45 यूनिट। ओके, नाउ हमको ये टेस्ट करना है ये हाइपोथेसिस क्या है। यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज हाइपोथेसिस हियर? सो लेट्स सी, हाइपोथेसिस इज
हाइपोथेसिस ये है कि सैंपल is random and coming from a normal population. This is our hypothesis for this question, that sample is random and coming from a normal population. That's what we have to check, right? अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको जो एग्जिट पोल वाले क्वेश्चन से कोरिलेट करके बताया था, अब इसको समझना ध्यान से। सैंपल साइज यहाँ पे 20 यूनिट दिया गया है, सैंपल का मीन दिया है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करो कि जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है और ये उस पॉपुलेशन से आ रहा है जिसका जो पॉपुलेशन मीन है 45 यूनिट है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप लेना है, फर्स्ट स्टेप क्या था? नल हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप वाज वी हैव टू कंसीडर अ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? एच नॉट से। और नल हाइपोथेसिस क्या बोलता है? नल हाइपोथेसिस बोलता है कि null hypothesis says that कि there is no significant difference, let there is no significant difference between the sample mean, that is mu naught, and population mean, that is mu. So mathematically इसको लिख सकते हैं हम लोग mu naught is equal to mu, and mu is already given 45 यूनिट। ठीक ना, बहुत सारे लोग इस चीज पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सैंपल मीन जो है वो म्यू नॉट ले रखा है और ऊपर मैं सैंपल मीन जो है वो एक्स बार से डिनोट कर रहा हूँ, सैंपल मीन 42 यूनिट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ये एक सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ एक्स नॉट वी आर रिप्रेजेंटिंग, इन नल हाइपोथेसिस वी आर रिप्रेजेंटिंग सैंपल मीन बाय म्यू नॉट rather than x naught. Clear? Now see, सो नल हाइपोथेसिस में हम ये हमेशा ये नल हाइपोथेसिस हमेशा कंसीडर की जाएगी। नल हाइपोथेसिस का मतलब इट्स अ ट्रू हाइपोथेसिस। जो भी सिचुएशन हमको दी गई है हम उसको सच सही मान के चलेंगे। जैसे उसने बोला कि सैंपल रैंडम है और एक नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है, ये हाइपोथेसिस है। तो मतलब सैंपल अगर रैंडम है तो सैंपल से जो मीन निकलेगा और जो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसका जो मीन होगा उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। मतलब इसको उस तरीके से समझो कि एग्जिट पोल में सैंपल के द्वारा जो ओपिनियन लिया गया उसके बेस पे जब मैं पूरे कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक डिसीजन लूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि सैंपल का जो मीन है या जो भी डिसीजन है वो जो है जो एक्चुअल डिसीजन आने वाला है, जो जो हम पूरे पॉपुलेशन के लिए लेने वाले हैं, वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, हम ये मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस में। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका, दूसरा स्टेप इसी में होता है, वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, और इसमें हम ये जो होता है इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस। बेसिकली नल हाइपोथेसिस में अगर हम उस कंडीशन को सही मान के चलेंगे कि मतलब सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जस्ट हम उसका उल्टा मान के चलते हैं कि म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू म्यू। ठीक है, म्यू नॉट इज नॉट इक्वल टू म्यू हम लेके चलेंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है दैट इज देयर इज अ सिग्निफिकेंट difference between sample mean and population mean। ठीक है, सो ये हमारा नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया।
अब जो मेन स्टेप आता है हमारा, जहां पे हमको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हमारा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हम बेसिकली टी टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो टी टेस्ट जब यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो अब वहां पे टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टी टेस्ट का फॉर्मूला है टी, अब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए टी कैलकुलेट, द फॉर्मूला फॉर दिस इज एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस रूट ओवर एन, ठीक है। ये टी कैलकुलेट का फॉर्मूला है। अब ऊपर हमको सारा डाटा दिया हुआ है, चुपचाप उनकी वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एक्स बार अपने को पहले से ही दिया हुआ है, एक्स बार का वैल्यू कितना है? 42 यूनिट सैंपल मीन। पॉपुलेशन मीन का वैल्यू है 45 यूनिट। स्मॉल एस का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 5। और एन 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 होता है सैंपल साइज, सैंपल साइज अपने को दिया है रूट ओवर 20। So this comes out minus 5 upon 5 by root over 20. And when you calculate this with the help of calculator, you will get minus 2.683 as a value. So we'll get T cal value is minus 2.683. But at the end of this step, we have to find the value of mod of T cal, which is 2.683। मॉड में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ वही आता है, उसका साइन नहीं आता, क्योंकि साइन सिंपली रियल लाइन पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मॉड में क्या होता है कि निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाता है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये जो वैल्यू है निगेटिव वैल्यू, ये उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होके यहाँ पे आ जाएगा। तो टी टेस्ट में टी कैलकुलेटिव वैल्यू हमारी आ गई इतनी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है? अब आपको टी टेबल से फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल, अब यहाँ पे किसका काम आएगा? यहाँ पे टी टेस्ट टेबल का काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम टी टेबुलेटेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? टी टेबुलेटेड की, ठीक है। फॉर द सिग्निफिकेंस लेवल 5% के लिए, 5% सिग्निफिकेंस लेवल के लिए हम लोग टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे लिखना क्या है? जो लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1, दैट इज n कितना है? 20 माइनस 1 दैट इज 19। Now we have to find the degree, we have to find the value of t, यहाँ पे टैब लिख लो, t tabulated at 5% level of significance for the degree of freedom n minus 1, that is degree of freedom 19, because n की वैल्यू 20 है तो माइनस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना था। अब इसके लिए हमको टी टेबल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू द टी टेबल, ठीक है। उसके लिए सो ये हमारी टी टेस्ट टेबल है, जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे दी गई हैं। सो आपको देखो, सबसे ऊपर में ये दिया गया है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। और ये है अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अभी हम ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है, हम अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम जब भी टी टेस्ट टेबल देखेंगे, हम ये टू टेल्ड रो में हम लोग ये चीज चेक करेंगे, टू टेल्ड रो पे चेक करेंगे, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या वैल्यू है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये 19 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है,
ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.093। ठीक है, सो ये वैल्यू हमारी आ रही है निकल के। अब यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है और ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है इस टेबल में, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देख रहा हूँ कोई भी वैल्यू, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू द 95% कॉन्फिडेंस लेवल। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जगह कभी आपको क्वेश्चन बोले कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे देखना है, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही होगा। ये कभी बोले क्वेश्चन में कि 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल पे अपने को टी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे टी टेबुलेटेड की वैल्यू जो है वो 2.093 कैलकुलेट की विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल, जहाँ पे ये हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये जो वर्टिकल लाइन थी ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में वैल्यू चेक करी तो ये आ रहा है 2.093। तो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी at the point 0.05 for the degree of freedom 19। सो हमने क्या कैलकुलेट किया वहां पे कि t 0.05 is equal to 2.093। this is the value that we have got from the t-test table. Now we have value of t cal and we have value of t 0.05. So in this is the value of basically t tabulated. Okay, now what we'll do in step number 5, now in step number 5, which is a conclusion part, we'll simply check whether the t calculated value का mod t tabulated value से क्या रिलेशन रखता है। ठीक है, सो सी यहाँ पे टी टेबुलेटेड वैल्यू आ रही है 2.683 और टी कैलकुलेटेड वैल्यू का मॉड आ रहा है 2.683 एंड टी टेबुलेटेड वैल्यू जो आ रही है वो 2.093 आ रही है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है टी टेबुलेटेड वैल्यू से। और जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे टी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसका मॉड टी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती है, यहाँ से ये इंप्लाई होता है कि जो हाइपोथेसिस है नल हाइपोथेसिस, द नल हाइपोथेसिस H नॉट इज रिजेक्टेड। अब जब रिजेक्ट हो गई तो हमने नल हाइपोथेसिस क्या लेके चला था कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। जब हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई इसका मतलब हो गया कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, and this implies sample is not taken from the correct population. क्लियर? सो इस तरीके से आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको दोबारा से इस क्वेश्चन का ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था सैंपल ऑफ 20 आइटम्स, मतलब सैंपल साइज दिया हैज मीन 42 यूनिट्स, मैन सैंपल मीन दिया हुआ है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। वी हैव टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज अ रैंडम सैंपल एंड कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन 45 यूनिट। हमको ये टेस्ट करना था कि क्या ये सैंपल रैंडम सैंपल है और नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है जिसका मीन 45 यूनिट है। सो हमने जो डेटा दिया था उसको यहाँ पे लिस्ट कर लिया, सैंपल साइज दिया था, आपने को सैंपल मीन दिया था, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन दिया था, पॉपुलेशन मीन दिया था,
हम हाइपोथेसिस लेके चले कि सैंपल रैंडम है और कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू हाइपोथेसिस होती है। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। किसके किसके बीच में? सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच में। इसलिए हम लोग म्यू नॉट इक्वल टू और म्यू इक्वल टू 45 लेके चले। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है जस्ट सैंपल हाइपोथेसिस की कॉम्प्लीमेंट होती है, मतलब रेसिप जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि म्यू नॉट और म्यू बराबर है, तो मैं यहाँ मान के चलूंगा कि म्यू नॉट और म्यू बराबर नहीं है। अगर मैं नल हाइपोथेसिस में मान के चल रहा हूँ कि म्यू नॉट और म्यू बराबर है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मैं बराबर नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं टी टेस्ट में। टी टेस्ट के लिए हमको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमको पता है। जो भी वैल्यूज दी गई थी मैंने वो वैल्यू रखी यहाँ पे और उनको कैलकुलेट किया, तो वैल्यू आ गई -2.683। जब मैंने उसका मॉड लिया तो वैल्यू आ गई 2.683। अब टी टेस्ट टेबल पे जाएंगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो टी टेस्ट टेबल पे हम जब गए, वहां पे 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जब हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू चेक करी, तो हमको उसकी वैल्यू 2.093 मिली। अब कंक्लूजन पार्ट में हम चेक करेंगे कि टी कैलकुलेट की वैल्यू टी टेबलेट की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है। अगर वो बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, अगर वो छोटी होती तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती। अब वो रिजेक्ट है तो इसका मतलब कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है सैंपल मीन और पॉपुलेशन के मीन में, और इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल इज नॉट टेकन फ्रॉम द करेक्ट पॉपुलेशन। इस तरीके से आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने हैं। सेम प्रोसीजर आपको करना है। एक दो क्वेश्चन मैं और करूंगा इस टॉपिक पे, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बट आप ये ध्यान रखें कि टी टेस्ट में 5 ही स्टेप्स हैं हमेशा। सबसे पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? हमेशा ध्यान रहे कि ऐसी हाइपोथेसिस जो हमेशा ट्रू है। नल हाइपोथेसिस मतलब कि वो ट्रू हाइपोथेसिस, जो भी चीज दी गई है वो उसको आपको ट्रू मान के चलना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसकी अपोजिट होती है, वो फॉल्स होती है। उसके बाद आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर टी टेस्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे टी की वैल्यू होगी, एफ टेस्ट यूज करेंगे तो यहाँ पे एफ की वैल्यू होगी, अगर काई स्क्वायर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। उसके बाद टी टेस्ट टेबल में अगर यहाँ पे टी टेस्ट यूज कर रहे हैं तो टी टेबल में हम जाके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम एफ टेस्ट यूज कर रहे होते तो एफ टेबल पे जाके वैल्यू फाइंड करते, और अगर काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहे थे तो काई स्क्वायर टेबल पे वैल्यू जाके यूज करते। तो टी टेस्ट टेबल में टी की वैल्यू कैसे चेक करनी है मैंने आपको सिखा दिया। कंक्लूजन पार्ट में हमेशा ध्यान रहे, दो होता है। अगर टी कैलकुलेट की वैल्यू लेस देन है तो एक्सेप्ट होगी, टी कैलकुलेट की वैल्यू ग्रेटर देन है टी टेबुलेटेड वैल्यू से तो रिजेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, यू कैन आस्क मी।